Greetings in the mighty name of Lord Jesus Christ. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। It's me, Evangelist Imran Ghosh from Pakistan. मैं इमरान घोष मुबशर पाकिस्तान से आपके लिए, And with me, our brother Shahid Albert. और मेरे साथ तर्जमे में भाई शाहिद हैं। Today, by the grace of God, we have bring a new message for all of you. खुदावन के फजल से आज हम आप सबके लिए एक नया मैसेज लेकर आए हैं। And we believe that this message will bless your life. This message will change your life. This message will give you a new direction. और हम ईमान रखते हैं कि ये मैसेज आप सबको बरकत देगा, आप लोगों की जिंदगी को चेंज करेगा। Because the word of God can transform the life. क्योंकि खुदा का कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है। And today our topic is recognize the name. आज का हमारा जो अनवान है नाम की पहचान। Yes, I am repeating again. Today our topic is recognize the name. हाँ, मैं दोबारा आपके सामने ये बयान करना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा अनवान है नाम की पहचान के बारे में है। If you have Bibles with you, can you please open with me? अगर आपके पास बाइबल मौजूद है तो आइए मेरे साथ खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को खोलते हैं। And let's see in the word of God. और खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं The Old Testament, पुराने अहदनामा में से book of Psalm, जबूर की किताब Psalm 91 51 जबूर and verse 14. और आयात 14। It's written that because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। Yes. मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। Yes. Today our topic is recognize the name. आज का हमारा जो अनवान है नाम की पहचान। Maybe you are thinking about that topic. Is that topic is little bit strange? Maybe हो सकता है आप ये इस चीज में परेशान हो कि आज का ये टॉपिक नाम की पहचान कैसा है। Yes, but we wanna tell you this message will bless you, change your life, and this message will give you a new thinking, a new mind. मैं ईमान रखता हूं कि आज का ये मैसेज आप लोगों के लिए जिंदगी को चेंज करेगा, आप लोगों की जिंदगी को चेंज करेगा और आपके लिए नई तब्दीली को लेकर आएगा। So recognize the name. Please be with us and be on the topic. We are sharing with you about recognize the name. मैं आप लोगों से ये बयान करना चाहता हूं कि नाम की पहचान इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। About which the name the word of God is saying to us. किस नाम के बारे में खुदा का कलाम हमें बता रहा है? I am repeating again, about which name the word of God is saying to us. खुदा का कलाम हमें किस नाम की पहचान के बारे में बता रहा है? Because so many names are in this world. क्योंकि इस दुनिया में बहुत से नाम हैं। So many names are famous in this world. इस दुनिया में बहुत से नाम मशहूर हैं। But which name the word of God is saying us to recognize? लेकिन किस नाम के बारे में, किस नाम की पहचान के बारे में खुदा का कलाम आज हमें बता रहा है? You know, names are more than the total population of this world. आप जानते हैं दुनिया की कुल आबादी से भी ज्यादा नाम है। That's mean the name has importance. इसका मतलब ये है कि नाम एक अहमियत रखता है। A name is a identity. क्योंकि नाम शख्सियत की अक्कासी करता है। A name reflects personality. और वही हमारी शख्सियत की अक्कासी करता है। Yes. And when we think and sometime when we call somebody's name or when we think about someone, suddenly an image comes in our mind how that person looks like, how he is doing or what his works. जब हम किसी के नाम को लेते हैं या सोचते हैं तो फौरन हमारे जहन में उस शख्स के बारे में आ जाता है और वो शख्स कौन है या कैसा है, हम ये सोचते हैं। So name has importance. Name is a identity and name reflects the personalities.
तो इसीलिए नेम एक पहचान रखता है, नेम अहमियत रखता है नाम, और हमारी शख्सियत की अक्कासी करता है। Personality shows qualities. शख्सियत खुसूसियात को जाहिर करती है। Even so many names are in this word, but why the word of God saying for specifically one and only name to recognize? दुनिया में बहुत से नाम हैं, लेकिन खुदा का कलाम सिर्फ इस नाम के बारे में ही क्यों हमें बता रहा है? Let's study the Bible again. आइए एक बार फिर मेरे साथ कलाम को खोलेंगे। Yes, we will see in the word of God, खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं, in the New Testament, नए अहदनामा में से the book of Acts, अमाल की किताब chapter number 4, बाप नंबर 4 verse number 12. उसकी आयात नंबर 12। It's written that salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है, और किसी दूसरा के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात है। Yes, word of God describes that only one name has given to mankind under heaven by which we must be saved. खुदा का कलाम बयान करता है कि इंसानियत को आसमान के तले कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम बच सकते हैं। Do you want to know that name? अगर आप इस नाम के बारे में जानना चाहते हैं, Do you want to know that name? आप इस नाम के बारे में जानना चाहते हैं, Which name can save us? कौन सा नाम हमें बचा सकता है, And which name we have to recognize? कौन से नाम को हमें जानने की जरूरत है? Let's see in the Bible. आइए एक बार फिर हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं, It's again in the New Testament, नए अहदनामा में से the Gospel of Matthew, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, chapter number 1, उसका पहला बाब, verse number 21st. उसकी 21 आयात। It's written that she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Hallelujah! Praise the Lord! That is the name of Jesus. उसके खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, उसके बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और यही नाम यीशु है जिसके वसीला से हमारी निजात है। Jesus is one and only name that has given to mankind under heaven, because only he can save us from the sins. इंसानियत को आसमान तले एक नाम यीशु बख्शा गया है जो हमारे गुनाहों से हमें निजात दे सकता है और हमें बचा सकता है। But here comes a question in our minds, यहां पर हमारे जहनों में एक सवाल उठता है that we are listening that name from our childhood time, कि बचपन से ही हम इस नाम के बारे में सुनते आ रहे हैं, but we cannot recognize the name by just listening. I want to tell you, be carefully, listen me, be with us. We cannot recognize the name by just listening. We are listening from our childhood time about the name of Jesus, but we cannot recognize the name by just listening. मेरे अजीजों, मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में बयान करने जा रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और मैं आपको खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के मुताबिक कह रहा हूं कि कभी भी हम किसी के बारे में सुनने से ही निजात हासिल नहीं कर सकते, सिर्फ सुनने से ही हम उसे पहचान नहीं सकते। To recognize the name, we have to know. अगर हमने नाम के बारे में जानना है तो हमें उसके बारे में जानना होगा। To know about someone and to know someone, these are two different acts. किसी के बारे में जानना और किसी को जानना, ये दो मुख्तलिफ अमल है। To know about someone, it's just about listening someone. किसी के बारे में जानना सिर्फ किसी के बारे में सुनना है, But to know someone, it's a relationship. लेकिन किसी को जानना एक रिश्ता है। Maybe we are listening about Jesus Christ from our childhood time. Maybe we call ourselves we are Christians,
we born in the Christian families, we belong to a Christian home, Christian families, but title cannot describe the Christianity, because Christianity is a relationship, it's not a religion. हम बचपन ही से इस नाम के बारे में सुनते आ रहे हैं, और आप ये सोच रहे होंगे कि नाम की पहचान के बारे में ये कौन सा टॉपिक है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आप लोगों को ये बयान करता जा रहा हूं कि हम सिर्फ एक क्रिश्चियन होने की वजह से ही नहीं बच सकते, जो हम शुरू से बचपन से अपने आप में एक टाइटल लेकर घूम रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं, हम यीशु को पहचानते हैं, हम यीशु को जानते हैं। सिर्फ यीशु के बारे में सुनने से ही हम नहीं बच सकते। To recognize a name, we have to know the name. नाम की पहचान के लिए हमें उसे जानना है। To know the name, we need a healthy relationship with him. नाम को पहचानने के लिए हमें उसके साथ एक मजबूत रिश्ते की जरूरत है। So my dear friends, my loved ones, we wanna tell you, if you have not accepted Lord Jesus Christ as your personal savior, because the word of God telling us he is the only and only name that has given to mankind, because he can save us from our sins. मेरे अजीजों, अगर आप सिर्फ यीशु मसीह के बारे में ही सुनते आ रहे हैं और अभी तक आपने उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो अभी आपके सामने वक्त है। That's a time for you. ये अभी आपके सामने ये वक्त है। Think about it. इसके बारे में सोचिएगा जरूर। Maybe you are disturbing in your life. Maybe आप जिंदगी की बहुत सी मुश्किलों में फंसे हुए हो। Maybe you are fed up. आप maybe परेशान हो। Maybe you are in frustration. आप maybe बहुत से दबाव के परेशानी में। Maybe you are in pressure. Maybe you are in depression. maybe आप दुनिया की हर किस्म की परेशानियों में फंसे हो, डिप्रेशन में, दबाव में, या जिंदगी की और तरह की मुश्किलात में फंसे हुए हो। But the name of Jesus Christ can save you. लेकिन एक यीशु मसीह नाम ऐसा है जो आपको बचा सकता है। He can give you salvation. जो आपको निजात दे सकता है। He can provide you a source. वो आपको हर किस्म की सहूलियत मुहैया कर सकता है। He can bless you abundantly. वो आपको जोर से बरकत दे सकता है, पूरे तरीके से बरकत दे सकता है। So this is the time you can accept him. ये आप लोगों के लिए वक्त है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। So if you have just listened about him, अगर आप सिर्फ अभी तक उसे सुनते आ रहे हैं, but now the time has come. लेकिन ये वो वक्त आ पहुंचा है आपके सामने। No, it's time for you. ये आप लोगों के लिए वो वक्त है। This message is for you. ये मैसेज आप लोगों के लिए है। God is speaking with you. खुदा आपसे बात कर रहा है। God is telling you, खुदा आपको बयान कर रहा है, accept my son Lord Jesus Christ. मेरे बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लो। Because he can save you. Because क्योंकि वही आपको बचा सकता है। He can give you salvation. वो आपको निजात दे सकता है। And he can give you a peace of mind. वो आपको इत्मीनान दे सकता है, चाहे आप जितनी भी फिक्रों में फंसे हुए हो। He can relax you. वो आपको पूरे तरीके से इत्मीनान दे सकता He है। can satisfy you. वो आपको मुत्तमिन कर सकता है। So my dear friends, the time has come for you. ये वक्त आप लोगों के लिए है। खुदावंद का रूह बयान कर रहा है, ये वक्त आप लोगों के लिए है। Accept Lord Jesus Christ as your personal savior. यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लो। And when you will accept him, your relationship starts with him. जब भी आपको उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तभी से आपका उसके साथ रिश्ता बहाल हो जाएगा। Ask him, call him, come into my life, and he will be with you. आप उसे पुकारिए, आप उससे बात करिए और उससे कहिए कि तू मेरे साथ हो। Because he is available each and every time. वो हर वक्त आप लोगों के लिए हाजिर है। Because he hears our prayer. वो हमारी दुआओं को सुनने वाला है। Because he is living Son of God. वो जिंदा खुदा का बेटा है। So my dear friends, मेरे अजीजों, that is the name we are sharing about you. जिस नाम के बारे में हम आपको बयान कर रहे हैं, वो यीशु नाम है। Yes, the name is Jesus Christ. वो यीशु मसीह है, उसका नाम यीशु है। So the time has come.
वक्त आ पहुंचा है आपके सामने। Don't waste your time. अपनी जिंदगी को लम्हे फिक्रों में ना फंसे रहें। If you want to meet with God, अगर आप खुदावंद से मुलाकात करना चाहते हैं, then the Lord Jesus Christ is one and only way to heaven. सिर्फ यीशु मसीह ही वाहिद रास्ता है जो आपको निजात की तरफ लेकर जा सकता है, जन्नत में लेकर जा सकता है। Yes. So that's why we are sharing with you about Jesus Christ. इसीलिए हम आप लोगों से ये बयान कर रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। So accept him as your Lord, as your personal savior. उसे कबूल कीजिए अपना खुदावंद, अपना शख्सी निजात दहिंदा। Give a chance to him in your life. उसे मौका दीजिए अपनी जिंदगी में आने का। And you will feel a presence of him. आप उसको अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे, उसकी हजूरी को अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। And we believe that your life will be changed. हम ईमान रखते हैं कि आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। And you will be not same as this time. You will be changed. You will be a new person. मैं ईमान रखता हूं, हम ईमान रखते हैं कि आप सेम नहीं रहेंगे। इस मैसेज के बाद, यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। So that is a name we will recognize. वही नाम है जो हमें जानना है। We know he will deliver us and set us on high. वही हमें सरफराज करेगा और हमें बरकत देगा। May God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे। May God give you a sense खुदावंद आप सब लोगों को समझने की, इस कलाम को समझने की और इस पर अमल करने का फजल बख्शे। that you recognize the name Lord Jesus Christ more and more. खुदावंद आपको इस कलाम को जानने की और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को और ज्यादा जानने की बरकत दे।